Sir, am I audible, sir? Yes, hi. Just a second, sir. No, Another host will be joining us soon. no problem. So can we start, sir? Yes, from my side, I'm all ready. So, Jai Hind, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. This is the official page of St. Xavier's College, Ranchi, NPC. And I welcome you all spectators and the cadets on behalf of our company. I'm your host, Sergeant Shruti Pandey, and along with me, I have Senior Under Officer Saket Kumar. So, without further ado, we would just like to take a moment to introduce our guest of honor for today, who obviously needs no introduction, but it is a mandatory thing. He's a former uh, army officer, a mountaineer, a youth icon awardee. Our guest of honor today, Captain Dharamveer Singh. Sir, Sir, would you like to say something? No, I'm very honored that I am finally on this page. In fact, Shruti had been pursuing this for some time, but due to some work, I had not been able to come live with you all. So thank you for honoring me with this opportunity. The pleasure is all ours, sir. So, without wasting much time, we would just like to give our audience a little brief introduction of today's topic that we are going to discuss. Our today's topic is exploring the armed forces and the career development in the armed forces. First of all, like any cliche interview, we all have an overview of what your career has been all about. But as a defense aspirant, me personally, sir, are very intrigued to know what was your motivation behind joining the armed forces and making a career out of it. Unlike a lot of I interact with a lot of youngsters who are aspiring to become an army officer. Unlike them, the decision to join the defense forces in my life came very late. मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था अपनी तब मेरे पास शायद ये थॉट मेरे दिमाग में आया और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि 1999 में जो कि मेरा फाइनल ईयर था ग्रेजुएशन का द कारगिल वॉर वाज गोइंग ऑन एंड in those days the social media was not very active. The only news that you would get to hear about anything that's happening in and around us or in the country was television news, and I very clearly remember that रात के 9 बजे स्टार प्लस का जो न्यूज होता था वो बहुत फेमस न्यूज होता था और सब लोग वहां पे बैठे रहते थे नजरें गड़ा के कि आज दिन भर में क्या हुआ बाकी दुनिया में क्या हुआ एंड स्टफ लाइक दैट so I think the kind of respect that every Fauji got was unmatched. And obviously, there was something else also going on in my life on personal front. My wife is 3.5 years elder to me, and we had to get married. And I had to prove myself at rather an early age than usually what I would have done in my usual course of time. तो आई थिंक इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन था और ग्रेजुएट में हो ही रहा था एंड हर आदमी चाहता है कि वो एक रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाए एक ऐसा काम करे जिससे उसके घर वालों के लिए थोड़ी सी ऑनर आए थोड़ा प्राइड आए एंड देयर इज नथिंग कम्स नियर टू आर्मी व्हेन वी टॉक अबाउट इट सो आई थिंक दिस वाज द रीजन एंड आई थिंक कारगिल was the reason why I joined the defense forces. So actually, many of us have the reason that is Kargil, that we are aspiring to become defense aspirants. So, sir, could you please throw some light for our cadets regarding your preparation journey for CDS as well as SSB? So, first of all, I'll give you some background of how and where I come from, and that will also help you understand because a lot of people, when I look at this college, Ranchi it was part of Bihar, and fortunately or unfortunately, if we look at the whole Indian academic scenario, people don't really think very highly of places
in the eastern part of the country, right? So when I'm talking to people who are in Ranchi, I'm assuming, और मुझे लग रहा है कि उन सभी लोगों का परिवेश वैसा ही होगा जैसा मेरा रहा होगा. So I come from Gorakhpur, okay, and I went to a Hindi medium school. ये चीजें बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे लोग जो एनसीसी इस समय आप लोगों के पास आसपास में जो लोग ज्वाइन करते हैं, there are a lot of preconceived notions, you know, that you have to come from a very fluent school and you have to be very fluent in English and stuff like that. पहली चीज अंग्रेजी, yes, it is the official language of Indian Defence Forces, but at the same time it is not something that you can't learn at a later stage in your life. Like up till 12th there was nothing that was English in my life. मतलब मेरा सिर्फ एक विषय होता था अंग्रेजी. अंग्रेजी के अलावा बाकी सारी चीजें मेरी जिंदगी में हिंदी में होती थी. जो मेरे सब्जेक्ट थे वो भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान ऐसे होते थे. और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो लोग, वो लड़के जो हिंदी मीडियम स्कूल से आते हैं, उनको ये ना लगे कि ये कोई बहुत ऐसी हुआ चीज है जिसके लिए हमें हमारी गाड़ी मिस हो गई है क्योंकि हमने अपनी लाइफ में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई नहीं की है. और 12वीं तक मैं डॉक्टर बनना चाहता था. उसके बाद मुझे ऐसा लगा, और मैं किसी भी, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो शायद नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिंदगी के फैसले आपके लिए सही या गलत होते हैं. जो आप अपने लिए फैसला लेते हैं वो दूसरे के लिए सही या गलत नहीं हो सकते. तो मुझे ये लगा कि मेरे लिए जो मेरा टेम्परमेंट था, medical was not the profession, and I summoned a lot of courage to go up to my father and I told him कि ये मैं नहीं करना चाहता हूँ और मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, और जो भी करूंगा मैं ग्रेजुएशन करने के बाद करूंगा. उस समय मैं इलाहाबाद में था और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे ब्रदर के एक फ्रेंड होते थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ग्रेजुएशन ही करनी है तो वाई फ्रॉम इलाहाबाद, यू शुड गो टू दिल्ली, दिल्ली इज अ बेटर प्लेस. यहां से जेएनयू आने का थॉट बना. एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो अगर डीयू जाता तो उसको वहां रहने के लिए, हालांकि आई विल नॉट नेम द कॉलेज, बट जो टॉप 5 डीयू के कॉलेजेस आप सोच सकते हैं, उनमें से 4 में से मुझे एडमिशन मिल रहा था बिकॉज आई वाज अ नेशनल क्रिकेट प्लेयर, नॉट बिकॉज आई वाज एकेडमिकली वेरी टॉप और पन्ने का, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स कोटा में वहां पे एडमिशन मिल रहा था. लेकिन अगर मैं वहां जाता तो मुझे एक सेटअप अपना बनाना पड़ता, राइट? सेटअप बनाने का मतलब है मुझे, आई वुड हैव हैड टू हायर अ रूम, माय कुकिंग, माय फूड, हाउ डू आई कम्यूट टू द कॉलेज एंड स्टफ लाइक दैट. तो बड़ा ही क्लियर था कि मुझे जेएनयू ही आना था बिकॉज जेएनयू हैड अ हॉस्टल सिस्टम. मैं जेएनयू आया. आर्मी की प्रिपरेशन जब मैं 3rd ईयर में अपने आया, उस समय ये थॉट मेरे अंदर आया. मुझे नहीं पता कि अब चीजें कितनी मुश्किल और आसान हो चुकी हैं, क्योंकि हर एक चीज समय के साथ इवॉल्व होती है, हर एक चीज समय के साथ बदलती है. आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों का रहना सहना. आर्मी की प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हाउ द जियो पॉलिटिकल सिनेरियो इज चेंजिंग. ओके, सो वी नीड टू बेयर दिस थिंग इन आवर माइंड कि आज से 20 साल पहले जो लड़ाई का सिनेरियो था उसमें शायद 80% पीपल वर फाइटिंग ऑन फुट. कारगिल की लड़ाई में इतना ज्यादा जो भी कुछ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इतने प्रिसाइज आर्म्स, एम्यूनिशन, सपोर्ट सिस्टम, स्ट्राइकिंग पावर, ये सारी चीजें तब तक नहीं होती थी, राइट? और बहुत डिस्टिंक्टली मुझे याद है, और शायद आप लोग भी हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि बोफोर्स गन का कारगिल की वॉर में बहुत एक मेजर रोल था. बोफोर्स गन जो बाकी गन्स होती थी उससे ज्यादा प्रिसाइज थी, ठीक है? और अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब आप सोच के देखिए कि यूक्रेन जैसी कंट्री हैज हेल्ड रशिया फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 2 months प्लस. तो ये इसलिए हो पाया है क्योंकि आज की डेट में इट इज नो मोर कि आपके पास 10 लोग हैं और मेरे पास 4 लोग हैं तो आप मुझे हरा दोगे, राइट? Because it is all about firepower, it is all about precision, it is all about striking the right place, it is all about destroying the replenishment. ठीक है? तो चीजें बहुत मशीन ओरिएंटेड हो गई हैं, ना कि पहले के टाइम की तरह. तो ये कहीं पे ये चीजें फौज की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी आपको दिखेगा, राइट? फीमेल ऑफिसर्स वर नेवर समथिंग दैट वी कंसिडर्ड इन आवर टाइम. बहुत होती थी फीमेल ऑफिसर्स, बट वो कम होती थी, राइट? आज ज्यादा हो गई हैं. एनडीए में भी आप लोगों को जाने की अब जाने लगी हैं लड़कियां. तो जैसे जैसे
हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि आज से 20 साल पहले जब लड़कियां घर से बाहर निकलती थी तो माँ बाप भी 10 तरीके की हिदायतें देके उनको भेजते थे कि टाइम से आ जाना। और अगर मैं अपने हॉस्टल की बात करूंगा तो वहां पे बाहर से आने वाली लड़कियां बहुत कम होती थी। लेकिन आज की डेट में प्रोग्रेशन इन लाइफ इज घर से बाहर जाना, राइट। आप छोटे छोटे शहरों की भी अगर आप बात करें तो वहां पे भी अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम आ चुका है। वहां पे लोग अपनी लड़के और लड़कियों में अब उतना भेदभाव नहीं करते हैं। रहेगा, ये भेदभाव रहेगा तब तक जब तक कि हम सोशियो इकोनॉमिकली बराबर ना हो जाएं, तब तक कि हमारी सोच ना बदल जाए। लेकिन ये चीजें बदल रही हैं, बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं ऑलरेडी। तो इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए उस पर असर पड़ेगा। लड़कों के लिए कहीं ना कहीं ये कंपटीशन और टफ होता जा रहा है। तो जब आप इन सारी चीजों को देखते हैं तो मैं आज से 20 साल पहले जो मैंने किया वर्सेस व्हाट यू गाइस नीड टू डू टुडे, there would be a word of difference, right? Having said that, let's understand what is it that the army needs. हर नौकरी की when you go for a software engineer's jobs interview, you know कि आपसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, what is the expertise that the person or the company is looking forward to. Similarly, you also have to understand कि आर्मी एक ऑफिसर में ढूंढ क्या रही है, राइट। और वो चीज बहुत ज्यादा डिफाइन करेगी, वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको आपकी प्रिपरेशन में। टिपिकली एसएसबी में रिटर्न के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें आपको कहेंगे, लेकिन एक औसत पीसीएम का लड़का, लड़की में इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज ओटीए डजंट नीड पीसीएम, राइट, बट इवन टू गेट इनटू द एनडीए, औसत का मतलब है 70-75% स्कोर करने वाले लड़के। आज की डेट में 75% सीबीएसई में स्कोर करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज होती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Yes, sir. करते हैं, जनरली लोग करते हैं, मतलब 70-75 क्या, मुझे तो लगता है मैं अपने आसपास जितने भी लोगों के बच्चों को देखता हूँ 10वीं और 12वीं में 90% के नीचे किसी के नंबर ही नहीं आते। सो आई थिंक द 90 इज द न्यू 70, राइट। आई वाज 68% इन 10th एंड 64% इन 12th, राइट। और if you are aware, so when I say if you are aware, your handheld device has stopped your knowledge base, right? आप जनरल अवेयरनेस की तरफ लोगों का ध्यान नहीं रहता है। पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिकली जितनी भी जनरल नॉलेज की चीजें होती थी सिर्फ वही न्यूज आप तक पहुंचती थी। या तो आप फोर्स्ड थे बाहर जाके मैदान में खेलने के लिए, या फिर जनरल नॉलेज के लिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है उस टाइम पे ग्रैंड स्लैम कौन कौन जीत रहा है, किसने साल के 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जीत लिए। जितने लोग अभी इस सेशन में लाइव हैं, I can bet if I ask, not even one person would be able to tell me कि चारों ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं लॉन टेनिस के। I can bet this। और मुझे ये याद है कि मुझे ये जुबानी याद होता था कि कौन सा एंड्रे अगासी ने जीता, कौन सा इवान लेंडल ने जीता, कौन सा पीट सैम्प्रस ने जीता और किसने 2 बार जीत लिया। सो फॉरगेट दैट, आप टॉप 3 रैंकिंग नहीं बता पाओगे। इफ आई आस्क समवन कि लॉन टेनिस में मेल और फीमेल की टॉप 3 रैंकिंग बता दो, कोई नहीं बता पाएगा। सो एक तरफ द टेक्नोलॉजी हैज रियली हेल्प्ड अस to get access to a lot of things very easily, but at the same time it has distracted us. We have so much to our knowledge. Someone has just written Djokovic has not won all the majors. First of all, Djokovic was not even allowed to participate in the last Grand Slam, if you remember. Anyways, so the point is, how do you bring yourself back to what is required at this juncture in life? हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि देखिए मैं प्रिपरेशन के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ पढ़ाई के लिए, स्पेशली रिटन के लिए, बिकॉज देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट। देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट। एंड इवेंचुअली आपको ये भी समझना पड़ेगा कि
जैसे ये समाज है, इसमें बहुत सारे वर्ग हैं, राइट? देयर आर रिच पीपल, देयर आर मिडिल क्लास, देयर आर अपर मिडिल क्लास, देयर आर लोअर मिडिल क्लास, देयर आर लोअर क्लास, right? Similarly, when you talk about any preparation, similarly when you talk about any job, similarly when you talk about getting into the defense forces, हर तरीके के लोग, फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं, राइट? फॉर्म भरना इज नॉट द एलिजिबिलिटी ऑफ कॉलिंग योरसेल्फ एन एस्पायरेंट। फॉर्म भरने के नाम पे तो आप नहीं कह दोगे ना कि आप फौजी बनना चाहते हो। सो देयर इज अ वेरी क्रिस्प ब्रैकेट ऑफ serious people who want to get into it, right? तो ये जो सीरियस लोग हैं ना, उससे 10% नीचे वाले लोग होते हैं। इफ दे ट्राई दे कैन गेट इनटू दैट ब्रैकेट ऑफ सीरियस पीपल, और 10% ऊपर वाले भी लोग होते हैं। बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये इस तरीके की है कि वहां पे आप एक इमेजिन करो कि आप एक कंपनी में काम करते हो जहां पे आपको एक असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी चाहिए। आपके मैनेजर की जो प्रोफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है, क्वालिफिकेशन है, वो मान लीजिए कि एक सिविल इंजीनियर फ्रॉम एनी रीजनल कॉलेज है इंजीनियरिंग के। आप एक असिस्टेंट मैनेजर बनके ये सोच के कि मुझे तो इसी कंपनी में काम करना है, और आप आते हो आईआईटी से। तो जब आप आईआईटी से जाते हो तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको ये भी देखना है कि यार विल ही बी अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय इन माय कंपनी, बिकॉज योर नॉलेज इज मोर देन पीपल हु आर गोइंग टू गवर्न यू। सो विल यू बी अ राइट फिट? आपको जिससे हुक्म लेना है, जिससे ऑर्डर लेना है, if at the very outset if you are appearing to be more knowledgeable, more experienced, it will kill the equilibrium of the company. वो सेटअप कहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। तो कई बार आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि फौज में बहुत समझदार लोग नहीं चाहिए होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि समझदार लोग नहीं चाहिए होते हैं, इसका ये मतलब होता है that probably somewhere people decide and उनको लगता है कि probably you could do other things better than how you would do things in the army, because they know the setup of the army, they know what is expected out of you. But if you have a particular setup, if you are a very very sharp person, if you have something which can probably help the society at larger extent, then at times there are very good people who do not get selected in the army, right? If there are people who've been to SSBs, there are a lot of people who've been very very good. I mean, Abdul Kalam Azad going to defense forces for SSB and not getting selected. Let me not take any other example, right? तो वो ऐसा तो है नहीं कि 25 साल की उम्र में अचानक से उनकी जिंदगी में कोई मंत्र किसी ने फूंक दिया होगा कि हाँ जी बस चलो अब आज से आपका ज्ञान आपके अंदर आ गया, आज तक तो जी आप ऐसे थे। तो वो चीज तो उनके अंदर हमेशा से रही होगी ना। तो आपको बेसिक्स इररिस्पेक्टिव विच क्या आप कर रहे हो जिंदगी में, आपको अपनी 10वीं और 12वीं तक की जो पढ़ाई है ना, ये आपको पूरी जिंदगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका ही और ब्रॉड होता जाएगा, लेकिन द बेसिक विल रिमेन योर 10th and 12th, whether it is mathematics, whether it is polity, science, social science, zoology, botany, whatsoever। आप अगर लाइफ की प्रोग्रेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 8वीं तक चीजें बहुत सारे सब्जेक्ट एक में होते हैं। 10वीं में आप जाते हो तो आपके 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। 12वीं में आप जाते हो तो उसमें से भी 2-4 बाहर हो जाता है, फिर भी आप साइंस के ही रहते हो। ग्रेजुएशन लेवल पे आप उन 5 सब्जेक्ट्स में से कुछ 3 पकड़ लेते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उस 3 में से आप किसी एक पे करते हो। उसके बाद जब आप एमफिल करने जाते हो तो शायद उस सब्जेक्ट में से कोई पार्ट पकड़ लेते हो, और उसके बाद पीएचडी करने जाते हो तो उस पार्ट का कोई टाइम पकड़ लेते हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? बट बेसिकली इट ऑल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम प्लेस। कहीं उसी जगह से जो आपने 10वीं और 12वीं में पढ़ा, वही पढ़ाई आगे जाके और कंसाइज और चीजें you need to study more about a particular thing, but the base I keep telling people, your base will always remain 10th and 12th। दुनिया का हर एग्जाम आपको पास करने के लिए बना हुआ है। नो एग्जाम इज डिजाइन टू फेल यू, राइट? पास करने के लिए बना है का मतलब यह है कि लोगों को और अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एसएसबी में आए ताकि उसमें से वो सिलेक्ट करें। तो ये जितनी नेगेटिव थिंकिंग है, जो लोगों को लगता है कि ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ नॉर्मल एग्जाम। Anybody who has the acumen to score 75 to 80% in CBSE would very easily, if they brush up their knowledge, will be able to crack the written. What is important
what is little tricky is SSB, and there are a lot of people who would give you a lot of and I'm not criticizing anyone. Everybody has his own experience, everybody has gone to SSB with his own preparation, and nothing succeeds like success, right? जो हो गया तो सब कुछ अच्छा है, नहीं हुआ तो कुछ भी अच्छा नहीं है, राइट? आप अपने बाल बड़े कर लो, सिगरेट पियो, लड़की है तो लड़के के साथ घूमे तो भी, लड़का है लड़की के साथ घूमे तो भी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो लोगों को कहने की बात ये होगी कि ये देखो, बाल बड़े करके भाई सिगरेट जला के घूमता था, साथ में लड़कियां भी होती थी, लेकिन फोकस था एकदम, बच्चे को पता था कि इसको करना क्या है, ठीक है? सो दिस इज वेयर वी से नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, इवन फॉर गर्ल्स द सेम थिंग अप्लाइज। बट एट द सेम टाइम अगर नहीं हुआ तो क्या कहा जाएगा, दिन भर लड़कों के साथ घूमती थी, बाल बड़े बड़े कर रखे थे, इसके फैशन ही नहीं खत्म होते थे, और क्या क्या तो खाती पीती थी। सो दिस सोसाइटी विल ऑलवेज जज यू फॉर गुड एंड बैड, और आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दिस बैटल इज योर्स, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो सब कुछ आपका है, दिस इज द आयरनी। नहीं होते हो तो सिर्फ माँ बाप आपके हैं, इस बात को आप समझना। इसलिए जिस पड़ाव पे आप लोग जिंदगी में हो अभी, आप लोग जिस स्टेज में अपनी लाइफ में हो, आप प्लीज इस बात को समझो कि पूरी एक बहुत अच्छी चीज आज की डेट में ये हुई है कि मेरे फादर के टाइम पे, आप लोगों के फादर के लिए शायद मैं वो बात नहीं कह सकता, 40-45 की उम्र में लोग अपने आप को रिटायर समझते थे। उनको लगता था कि बच्चों का कुछ हो जाए और उसके बाद हो गई, अपनी लाइफ सेट है। But I will not give anybody else's example. I am 42-year-old and I am still exploring things which are new. मैं कुछ ऐसा नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं पहले से करता आ रहा हूं, या जिसकी मैंने पढ़ाई की हो, या जिसका मैंने कोर्स किया हो। आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। आई डोंट mentally, I am not 42. I am not ready to give up. I am not retiring. I am doing everything which probably I did when I was 30 or maybe more than that. तो जो अच्छी चीज आपके लिए है, वाई आई सेड दिस, जो कॉन्टेक्स्ट में सेट करना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगले कुछ दिनों में जो अभी आपको लगता है कि आपका करियर होना चाहिए, सी नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ओके, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। जैक वेल्च का नाम सुना है आप लोगों ने? एक कंपनी होती है जी कैपिटल। जी कैपिटल के जो पहले सीईओ थे जैक वेल्च, उन्होंने अपनी जिंदगी का 99% वेल्थ 50 साल के बाद अर्जित किया। So the point that I'm trying to make here is, that we get very, very serious about certain things in life in very early age. पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यहां आपकी जिंदगी खत्म हो गई। और ये जानना और समझना और इनकलकेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप सीखते सिर्फ अपनी हार से हो। You learn only when you fail. If everything is going right in your life, that means you are not trying enough. अगर सब कुछ आपकी जिंदगी में ठीक चल रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल। इफ यू ट्राई न्यू थिंग्स यू आर बाउंड टू फेल। जब तक आप फेल नहीं करोगे तब तक आप सीख ही नहीं सकते कुछ, राइट? सो फेल, फॉल, द रियल power is not, I mean, you're not degraded because you have fallen. Get up. How often you can get up is the real strength, right? अब एसएसबी की बात करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ चीजें, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि क्या ये इधर उधर की बकवास कर रहा है, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि सोशल मीडिया ने आपको घर के अंदर बंद कर दिया है, राइट? मेरे घर में 2 16 साल के बच्चे हैं, राइट? मेरे जुड़वा बच्चे हैं, 10th में मेरा बेटा है। और वो कहते हैं ना, बहुत सारी छोटे छोटे एनेक्डोट आप लोगों ने सुने होंगे कि हमारे टाइम में माएँ कहती थी कि चलो ऊपर आओ, आज की माएँ कहती हैं चलो बाहर जाओ, राइट? बिकॉज यू आर ऑल द टाइम यू आर ऑन द स्क्रीन। मतलब मुझे मिन्नत करनी पड़ती है अपने बच्चे को कि बेटा थोड़ी देर जाके साइकिल चला ले, थोड़ी देर थक जाओ। रात के 2:30 बजे वो मेरे बगल में लेटा रहेगा, ही वॉचेज थिंग्स जो मुझे मतलब समझ में भी नहीं आता, मतलब मुझे पलट के अपने मोबाइल में देखना पड़ता है, ठीक है? सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज योर लाइफ इनसाइड हाउस is very different from what in our time life outside house was.
When we talk about sports, आपको स्पोर्ट्स सिखाता क्या है? कभी आप लोगों ने ये सोचने समझने की कोशिश की है खेलने कूदने से क्या होता है? कभी ये समझने की कोशिश करो। एकमात्र ऐसी चीज है दुनिया में, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, दिस इज वन थिंग इन द वर्ल्ड, one thing in the world where when you lose, people don't criticize you, they come and they tell you that next time you have to win. This is the only good thing in the whole world, sports, where you fail, you come back yourself and you say that I have to win next time. You don't get demoralized कि oh shit मैं तो हार गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, एक साल खराब हो गया. And you have a lot of statistical data, people who've been, I mean, look at Sri Lanka winning the 1996 World Cup. Look at 2007 World Cup when Bangladesh hit India out of the World Cup. So, sportsman spirit की लोग बात करते हैं. Sportsman spirit क्या होता है? Sportsman spirit is nothing but how you fit in a team. And how you inculcate and learn those things to imply in your life. आप 11 की टीम हो, चाहे वो अगर क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, एक टीम में आपकी जगह होती है, राइट? आप सब कुछ अहम ब्रह्मास्मि तो हो नहीं जाते आप. फौज यही ढूंढती है कि जब आप आओगे इस सेटअप में, हाउ डू यू जेल विद दिस सेटअप. एक आर्मी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो फौज ये ढूंढ रही है कि जब आप आओगे, जिसको भी वो लेंगे, हाउ गुड अ टीम प्लेयर दिस पर्सन विल बी. क्या वो लोगों को अपने साथ लेके चलेगा, या सब कुछ खुद करने की कोशिश करेगा, या जिस चीज में वो अच्छा है वो खुद करेगा और बाकी लोगों को जो उनकी अच्छाइयां हैं उसके बारे में बताएगा. कई बार ऐसा भी टाइम आएगा कि आप सारे ऑपरेशन में आप तो नहीं जाओगे, कोई और जाएगा दूसरे की खुशी से. इफ यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा अगर रन बना रहा है या दूसरा अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आपको जलन होने लगेगी. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो कि एक स्पोर्ट्समैन के अंदर ऑलरेडी होता है, राइट? नीचे किसी ने मुझसे OLQs की बात की है. OLQs आर नथिंग. आप अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक आपको जितनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, आप उसको देखो कि आप उसको किस तरीके से करते हो. आपकी माता जी आपको भेजती हैं बाजार, जाके कुछ ले आओ. These days you all do it online on Swiggy and where not. But everything that you're doing, when you are crossing the road, when you see an accident, what is your first reaction? That is where your courage, your initiative, everything comes into picture. When you are with your friends, do people like you or not? That is your liveliness. आपके साथ, वो कहते हैं ना, मोहल्ले में कभी आपने क्रिकेट या कोई गेम खेला होगा जिसमें किसी के घर में अगर बॉल चली जाती है तो आप आपस में फिर आप लड़ने लगते हो, यार मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दो. एट द सेम टाइम देयर आर कॉल आई थी, काट दिया. नाउ इट्स फाइन. Yes, sir. और ऐसे ही फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घर में अगर बॉल चली जाती है तो आपको कुछ नहीं लगता है कि मतलब हाँ ठीक है मैं जाके ले आऊंगा, और आप आपस में बात करते हो, अरे वो वाले भैया मस्त हैं. सो दिस वो वाले भैया मस्त हैं, उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिया मस्त होने के लिए. इट इज हिज नेचर, राइट? यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, यू हैव टू असेस योरसेल्फ. कोरोना के टाइम में सब लोग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बन गए और सबने अपने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि यू कैन रीच आउट टू मी. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि रात को 11 बजे जब आपके पास किसी का फोन आता है तो क्या आप इस बहाने से वो फोन नहीं उठाते हो क्योंकि 11 बज रहे हैं और आप अगले दिन आसानी से बोल सकते हो कि मैं सो गया था. ऐसा होता है. जब आप वो फोन उठाने लगोगे ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 500 बार, तब लोगों को ये यकीन हो जाएगा यार कि उसको हमेशा फोन कर सकते हैं. इफ यू कॉल हिम, फोन उठाएगा जरूर, बिजी होगा तो कुछ बोल देगा. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको दूसरों से अलग करती हैं. आप राह चलते, जब बहुत छोटी सी बात है, बहुत सारी जगह पे क्यू सिस्टम होता है. How often you have stopped someone at an airport or in a queue when you are going for a reservation
how often being a girl you have utilized that because you are a girl, so your true individuality is when you are not monitored and what you're doing is the true you. मम्मी पापा घर में है तो सुबह उठ के नाश्ता करना है टाइम से, थोड़ी देर बाद मम्मा बोलेगी आपको कि नहा लो, मल्लिच की तरह पड़े हुए हो, तो आप नहा लोगे, खाने के पहले नहा लो नहीं तो नहीं दूंगी खाना, रात को इतने बजे से आ जाना। अब मम्मी पापा दोनों चले गए बारात में, मौसी की बेटी की शादी में, अब देखो फिर मजे। सो दैट इज रियल यू, सो यू नीड टू इंप्रूव योर रियल यू। लोग दूसरों में ढूंढते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आई कीप टेलिंग दिस टू पीपल कि आपके अंदर की अच्छाइयां और बुराइयां सबसे अच्छे से आप जानते हो। Yes. आप शीशे के सामने जब खड़े होते हो तो वो जो एक आखिरी बाल भी जब वो ठीक करके आप घर से निकलते हो ना, बिलीव यू मी, किसी का ध्यान भी नहीं जाता उस लास्ट स्टैंड पे, बट यू नो कि यार मेरे में ये भी ना, ये सही नहीं लग रहा है। So you are the judge. Okay. As far as books are concerned, I think I will be able to send you certain guidelines on which I have collected from a lot of selected candidates, जिन लोगों से बातचीत करने के बाद, और वो मैं आपको भेज दूंगा। आप लोगों के जो भी जानने वाले लोग हैं आप उनके पास सर्कुलेट कर दीजिएगा। As far as SSB is concerned, no one fails or passes SSB. इस चीज को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए कि कोई पास या फेल नहीं होता है एसएसबी। इधर यू आर कट फॉर द डिफेंस फोर्सेस और यू आर नॉट कट फॉर इट। ओके, इसका आपके जिंदगी में बाकी एग्जाम्स और आपके एकेडमिक एक्सीलेंस से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो ट्रू सेल्फ है वो आप वहां पे जाके दिखाइए। किसी के जैसा आप हो जाओगे उसके लिए आपको नहीं सिलेक्ट किया जाता है। आप क्या यूनिक हो उसके लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है। श्रुति बहुत देर से कुछ पूछना चाह रही है, इसको लग रहा है यार ये कौन सा बटन मैंने दबा दिया, ये तो बंद ही नहीं हो रहा। No, sir. No, sir. It was interesting to hear you, sir. हाँ जी बताइए, आप कुछ Interesting. कहना चाह रही थी। सर, हम जब डिफेंस एस्पिरेंट्स की बात करते हैं तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हमारी लाइफ में होती है वो है एकेडमी जाना। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी एकेडमी लाइफ कैसी थी और आपकी ईयर ऑफ सर्विस भी क्या थी सर। तो इसको मैं क्या ग्लोरीफाई करके बताऊं। देखो एकेडमी का एक बहुत सिंपल सिद्धांत होता है, उसको कहने के लिए लड़के लड़के अगर आपस में बात करेंगे तो कुछ और टर्म यूज करेंगे। जो सोशली एक्सेप्टेड टर्म है वो है रगड़ा, राइट। तो एकेडमी का एक जो मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि आपको फिजिकली और मेंटली आपके ब्रेकिंग पॉइंट तक ध्यान रख के ले जाना। ध्यान रख के ले जाने का मतलब दौड़ाएंगे 20 किलोमीटर लेकिन शुरू होने के और खत्म होने के बाद देखेंगे कि ठीक होना, हॉस्पिटल ले जाने की तो जरूरत नहीं है, खाना खाया है कि नहीं खाया है, अच्छा अभी जाएगा तो कपड़े मिल जाएंगे कि नहीं, इसको बोलते हैं ध्यान रखना। अगर यही नहीं होता तो बिना ध्यान रखे वाला हिसाब किताब हो जाता। ठीक है, तो आपकी लिमिट्स को वो टेस्ट करते हैं। आपकी लिमिट्स को इसलिए टेस्ट करते हैं कि कल को जब आप एक ऑफिसर बन के, जब आप एक इंडियन डिफेंस का एक बड़ा ही डिफरेंट प्रारूप है, राइट। 70% of the defense forces is deployed into the Jammu and Kashmir. तो वहां पे आपकी फिजिकल फिटनेस अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। अगर हमारे देश का हिस्सा जम्मू कश्मीर में 70% अगर आर्मी नहीं होती, सबको अगर टैंक से चलना होता या ग्राउंड सोल्जर सब लोग होते जहां पे गाड़ी भी चल सकती, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी चल सकती, जहाज से अगर खाली वो होता तो शायद इन चीजों पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लड़ाई पहाड़ों में चढ़ के लड़नी है। तो एकेडमी के अंदर एक चीज सबको मैं सिखा के भेजता हूं कि अगर तुम सबसे अच्छे बच्चे बन के रहोगे तो भी तुम्हें रगड़ा मिलेगा, अगर तुम मकरे बन के रहोगे तो भी तुम्हें रगड़ा मिलेगा। चॉइस इज योर्स। डू यू वांट टू बी द मोस्ट सिंसियर गाय? कुछ कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आप लोगों को, अच्छे एग्जांपल नहीं है पर दे रहा हूं। तो एकेडमी में लोग क्या कहते हैं ना कि वो आपका डीएस बोलेगा कि गो एंड टच एंड बैक,
कुछ दिखा देगा 500 मीटर दूर। तो उसमें कुछ ना बहुत जोशीले बच्चे होते हैं, वो एकदम आगे आगे जाएंगे, छू के वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग छू के पहले आ गए, आई विल टेक फर्स्ट 5, उसको वहां बिठा के और बोलेगा कि हाँ भाई आजा बैठ। किसी को बोल देगा कि इधर पैर ऊपर करके हो जा, या हैंग हियर, या बेंड डाउन, वो कुछ ना कुछ उसको वहां पे डिफरेंट सजा मिल जाएगी। और कुछ मकरे होते हैं मेरे जैसे, वो ना उस झुंड के बीच में रहेंगे, वो धीरे 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 जाएंगे, जब आगे वाले मुड़ के आ रहे होंगे तो उनके साथ मुड़ जाएगा, फिर जब इधर वाले आ जाएंगे तो फिर धीरे 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 जाएगा, फिर उधर झुंड में से जब, बिकॉज द बेसिक फंडामेंटल इज कि उसको 40 मिनट आपको रगड़ा देना है। तो उसमें से आप अच्छे बन जाओगे, इसका ये थोड़े मतलब है कि आपको वो छोड़ देगा। अब इमेजिन आप तो उस भीड़ में हो, अच्छा बुरा क्या हो रहा है आपके साथ आपको पता है। ये जो बिल्कुल आंख के सामने बेंड डाउन हो रखा है बंदा, वो कितनी देर तक बेंड डाउन रहेगा भाई? थोड़ी देर बाद उस पर नजर जाएगी तो वो कुछ ऐसे वैसे करते हुए दिखेगा, तो फिर वो बिल्कुल पास में एक मिल जाता है बंदा, ब्लडी शैमर, यू आर डूइंग इट राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, तुझे लग रहा है कि मेरा ध्यान उधर है, फिर उसके लिए एक नई सजा निकल जाती है। यू कांट एस्केप द रगड़ा इन एकेडमी। बॉटम लाइन ये है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने का मतलब ये है कि कई बार आपको खाने को नहीं मिलता है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे सजाएं मिलती हैं। जो सबसे अच्छी चीज एकेडमी की है वो ये है कि एवरी रूल इज डिजाइंड, एक लाइन है, आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा, वन फॉर ऑल फॉर वन। एकेडमी के सारी चीजें जो एक आदमी के लिए नियम है वही सबके लिए है, जो सबके लिए है वही एक आदमी के लिए है, कोई स्पेशल नहीं है। तो जब आप ग्रुप में जाते हो, जब आप स्क्वाड में जाते हो, किसी एक आदमी का हाथ नहीं मिलता अगर, तो सबको रगड़ा मिलता है। वो आपके अंदर एक टीम स्पिरिट लाने के लिए होता है। अगर कोई रेस बैक होता है तो वहां पे कोई इंडिविजुअल अवार्ड नहीं होता है, एक्सेप्ट द क्रॉस कंट्री। जितनी भी चीजें होती हैं वहां पे सब कुछ सबके लिए होती हैं। कंपनी जीतती है, प्लेटून जीतती है, ये फौज है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन इट इज, कम टू थिंक ऑफ इट, इससे ज्यादा रीजनल और कास्टिस्ट तो कोई दुनिया में चीज ही नहीं है। सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, but you know everything gets aligned in one direction on one order. That's the beauty of defense forces. That's the beauty of defense forces. फौज में सर्वधर्म स्थल होता है। आज की रेट में अगर आप न्यूज चैनल खोलोगे ना, तो आपको खाली मतलब कहां से गड्ढा खोद के मूर्ति निकाला गया, कौन कहां पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है, इन चीजों की फौज में कोई जगह नहीं है। आपका रिलीजन सिर्फ और सिर्फ वो है जो आपके ट्रूप्स का है। आपका कर्म, धर्म, ईमान, सब कुछ वही है जो आपके ट्रूप्स का है। अगर वो अच्छा है तो आप अच्छे हो, अगर उसमें आप भेदभाव करोगे तो आप अच्छे नहीं हो। सो एकेडमी इज इट्स अ लेवलर, और सजा भी मिलती है, मजा भी मिलता है। जो आपको सजा देता है आपका सीनियर, वही आपका ध्यान भी रखता है। सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड कहते हैं ना कि it makes a boy a man, and now we can also say that it makes a girl a woman. हालांकि womanhood complete करना एक motherhood से linked है, but the kind of maturity, the kind of self awareness, the kind of self confidence that you gain out of academy, it is unmatched. आपको जिंदगी भर के लिए एक ये सोच मिल जाती है कि there is nothing that is impossible. ये चीजें एकेडमी आपको सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी, देयर इज नथिंग बियॉन्ड योर फिजिकल लिमिट, और देयर इज नथिंग बियॉन्ड योर मेंटल एक्सेप्टेंस। तो ये चीजें आपको एकेडमी सिखाता है। मेरा टेन्योर 2001 से 2007 तक का रहा है, और हमारे टाइम पे शॉर्ट सर्विस 5 साल का होता था, तो जिसमें 1 साल की मेरी ट्रेनिंग रही और बाकी के 5 साल मैंने फौज में नौकरी की। एंड तो ये है मेरा टेन्योर। अगला सवाल। सर ये सारी बातें सुन के एक एक्लिमेटाइजेशन ट्रेनिंग टाइप होता है हमारा एनसीसी में,
जो रगड़ा और मकड़ा ये सब से रिलेटेड होता है, तो वो सारी चीजें काफी रिलेटेबल लगी। और सर, so what was your year of service? Could you please elaborate? 2002 to 2007. And I think I was very lucky that I got to serve in Jammu and Kashmir for 2 years, 3 months. क्योंकि बिना वहां पे नौकरी किए अगर मैं शायद बाहर आ जाता तो थोड़ा एक मलाल रहता कि शॉर्ट सर्विस में JNK नहीं देख पाया, हाई ऑल्टीट्यूड नहीं देख पाया, काउंटर इंसर्जेंसी नहीं देख पाया. बट आई थिंक दैट वन टेन्योर ऑफ गुरेज इट गेव मी. सो गुरेज इज कंसिडर्ड टू बी high altitude counter insurgency area, right? So this, in army terminology, in defense terminology, this is supposed to be the toughest tenure that army offers you, because वो high altitude भी होता है और militancy भी वहां पे होती है. But then you have fun. मतलब किसी भी चीज को मैं बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके बताने के उसमें नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी कहानी है ऐसी हर फौजी की कहानी है, ठीक है. और आप लोगों के लिए जो चीज है वो ये है कि इट इज नॉट समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, यू जस्ट नीड टू हैव योर फोकस राइट. और आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे. मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का टेक्स्ट आया कि आई मेट हिम इन नासिक, नॉट नासिक, कल्याण. I met him in 2019. I had gone for a talk. And he got selected in his 22nd attempt. 22वें attempt में वो लड़का select हुआ. He kept giving all SSBs, you know, AFSB, Navy, Army, everything. NDA के लिए reject हुआ था. मतलब I have the screenshot of his this thing. और जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था ना कि योर ट्रू सेल्फ इज व्हेन यू आर नॉट मॉनिटर्ड, ये लाइन उस लड़के को याद थी. एंड उसने वो लिख के मुझे भेजा था कि सर मुझे अभी भी आपकी टॉक का वो लाइन याद है, बट अब मैं क्या लड़का बोलूं. नाउ ही इज अ जीसी, ही इज अ जेंटलमैन कैडेट, एंड इन नेक्स्ट 3 days ही विल बी इन OTA. 20th को OTA की रिपोर्टिंग है, टुडे इज 17th. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. आई थिंक येस्टरडे I got a text from somebody from UP. वो twin brothers हैं, right? और उसका भाई 2 साल पहले फौज में गया and he got selected this time. He is also getting into the army. Both the brothers. और वो एक लांस नायक रिटायर्ड के लड़के हैं दोनों. So look at the level of inspiration and motivation. You know, there is this girl from Bhopal. She is a daughter of a Havildar, and she will be joining the academy 3 days after. So इससे ये सीखने की जरूरत नहीं है कि, या rather I should emphasize upon what is it that you should learn. इस माहौल में रह के अगर वहां तक जाया जा सकता है, then you guys are blessed. आपके पास तो सब कुछ है. So don't blame it on anyone else. The only thing that can stop you is you yourself. Yes, Ashish, you are right. Monica Divedi from Bhopal. So there are exceptionally good people around you and inspirational people around you. You just need to tell yourself, you just need to convince yourself where you want to be. How do you want to be known after 5 years? आज से 5 साल बाद क्या चाहते हैं आप, दुनिया आपको किस तरीके से देखे? That's it. The day you know this answer, sooner or later you will reach the destination. Yes. और ये 5 साल दोबारा नहीं आएंगे. चक दे मूवी का डायलॉग नहीं है ये कि ये लास्ट के इतने मिनट आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, this that. The bottom line is कि the moment you realize where you want to be 5 years from now, you will start acting on it. छोटे छोटे अपने लाइफ के लक्ष्य रखिए, छोटे छोटे, मेजरेबल. गोल और सपने में, ड्रीम और गोल्स में सिर्फ यही अंतर है. Goals are measurable, dreams are not measurable. So when you say that I want to run a full marathon, that's a dream. But when you say that I want to run a full marathon in 24 months,
In first 3 months, I will start running or working on my body. In next 3 months, I will take it to 10 kilometers. In next 3 months, I will take it to 15 kilometers. By 1 year, I will do a half marathon. That is goal. When you break it into milestones and you measure it, what is right, what is wrong, and you learn from it, keep introspecting yourself. That is goal. बाकी तो सब सपना है यार. मेरे को ये करना है. That's a सपना. मेरे को पायलट बनना है, सपना है. मेरे को आर्मी में जाना है, सपना है. Please don't mind this. But when you break it into small pieces, when you pick up that bloody Tata McGraw-Hill which has bloody thousands and thousands of questions, और जब आप उसके 1/4 को डेडिकेट करते हो अपनी एफर्ट को कि यार आज से 1 महीने बाद ना मैं ये किताब श्रुति के ऊपर फेंक दूंगा, मैं बोलूंगा कि ये ले उठा और पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 600 तक कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ ले, then you are working for it and you only know. मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, हाँ भाई पढ़ाई हो रही है? हाँ. मेरे को क्या घंटा पता चलेगा कितना पढ़ाई की है कितना नहीं पढ़ा? रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा. बाकी आज की डेट में तो सब लोग लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं भैया. हमारे टाइम पे तो चलो फिर भी किताब होता था, कुछ नहीं तो किताब के नीचे अंडरलाइन करना पड़ता था. लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ना हम लोग अंडरलाइन करते थे उसको कि मतलब हाँ बहुत ध्यान से पढ़ रहा है. ठीक है. आजकल तो लैपटॉप में कान में ईयरफोन लगा हुआ है. मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ, सामने बैठ के मेरी बेटी अब पढ़ रही है कि गाना सुन रही है कि पिक्चर देख रही है, किसको पता. पर ये दूसरों को दिखाने के लिए चीजें नहीं है. That's what I'm saying. It is for you. When you're not monitored and what you're doing, if that is correct, और believe you me, इतना कुछ करने जैसा नहीं है यार. Especially, how do I tell you? Anyways, तो that's the thing. And कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं. कुछ लोगों के अंदर एक दिव्य शक्ति तो मैं नहीं बोलूंगा, बट यू वुड लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: हार्ड वर्क, टैलेंट, लक. एंड माय फेवरेट एग्जांपल इज मायावती. Do you think there are not better politicians? There are. Do you think there are not better educated and better politically aware leaders? There are. Yes, sir. Absolutely. But then Yes, luck. sir. That is where luck comes. She was there when it was required, where she was supposed to be. Similarly, there is this factor, but वो कहते हैं ना कि luck favors the brave and all. लकी होने के लिए भी 10 क्वेश्चन में से जो आपको 5 आते हैं, 5 तो आना चाहिए ना आपको. Yes, sir. अब सारा ही लक पे छोड़ दोगे कि भाई मैं पढ़ के ही नहीं जाऊंगा और मेरा हो जाए, तो वो तो नहीं होगा. सो अंडरस्टैंड कि लक फैक्टर भी कैसे आएगा, हाउ विल इट प्ले. राइट, यू डिसाइड अ टीम एंड यू पिक अप 3 स्पिनर्स. लकी तो तभी होगे ना जब उन तीनों को स्पिन कराने तो कम से कम आता होगा. नॉन प्लेयर्स को लेके तो नहीं चले जाओगे कि अरे मेरी किस्मत अच्छी होगी तो हम जीत जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता. सो यू स्टिल हैव टू हैव दैट नॉलेज ऑफ थिंग्स टू गेट लकी इवन. राइट, जस्ट लक इज नथिंग. Just luck is nothing. You have to have the knowledge. You may have little knowledge. You may not have studied as much as someone else has. But then you have to have that little knowledge to be able to be lucky. Right? Someone has just written consistency. Consistency is the most beautiful thing on this earth. Lage rehna. Nobody knows when you fail. इमेजिन कितने सारे लोग कितनी सारी चीजों के लिए अपनी जिंदगी में उन चीजों को लक्ष्य बना के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और किसी जगह पे जाके छोड़ देते हैं. कोई बेंचमार्क है कि आप कहां तक पहुंच गए थे? शायद एक बार और ट्राई करते तो हो जाता. जो 7वीं बार में सिलेक्ट होता है, 3 बार मेरिट आउट होके जो फिर मेरिट इन होता है, कंसिस्टेंसी ही तो है.
जी सर। सो बिलीव इन योर सेल्फ। सक्सेस और फेलियर में सिर्फ सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि a leader never quits. If you guys have access to Netflix, please watch Formula One. एक नई सीरीज बनी है, थोड़ा सा क्लीशेड है, आप लोगों को लगेगा कि ये कहां की बातें कहां पे ले जा रहा है. And it is all about a company run by a lady which did amazingly good, and suddenly it did not win any Formula One title for 6 years. And how she built it up from there. She kept on believing in herself that this team will do good someday. And then they won it. Please watch it. It's a very beautifully made documentary come series. वो एक बार देखना. मैं थोड़ा सा एक चम्मच नमकीन खा लेता हूँ. मुंह सूख रहा है. Now, So, like you mentioned, you were commissioned in the army in 2002. And so we all know that in December 2001, our parliament was attacked by the terrorists funded from Pakistan. And soon after that, a standoff between India and Pakistan was held, which lasted almost for a year. So for you, being a newly commissioned officer, how was the situation on ground, and were you posted on some area where the standoff was occurring? बहुत relevant question पूछा. So when we got selected, the Op Parakram was going on. The operation was called Op Parakram. Yes, sir. Operation And Parakram. yes, Yes, sir. I straight away after academy, after my break, I was sent to, I wouldn't name the place, but 80% of the army was mobilized, because while internationally it was agreed upon that India will not attack the neighboring country, but at the same time it was too obvious for any defense force to withdraw completely. So the whole defense was holding the defenses across the border, and I did get posted there. And आज अभी दिल्ली में 49 डिग्री सेल्सियस परसों चला गया है. I still remember 47 degrees Celsius in a tent is what we faced through the summers. And वहाँ कोई कंप्लेन नहीं करता. कूलर बहुत होता है, कपड़े खोलो, बढ़िया सो जाओ अपनी चारपाई पे कूलर चला के. खाना मिलता है. रात को जिसको गम गलत करने की आदत है, फौज सब ध्यान रखती है. So yes, if I were to give you a very precise answer, I got commissioned into the defense forces. In fact, my YO's course was truncated for 3 months. Typically the YO course duration is 6 months. जितने भी लोग फौज में एकेडमी से रिक्रूट होते हैं, उनको एक जिस कोर में वो जाते हैं उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है. इन्फेंट्री वाले इन्फेंट्री की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं. मैं आर्टिलरी का था तो आर्टिलरी की ट्रेनिंग के लिए. दैट इज कॉल्ड यंग ऑफिसर्स कोर्स, द वाईओस कोर्स, एंड टिपिकली दैट इज a 6-month long course. But in those days, since there were a lot of speculations were on, they needed more leaders there than doing the courses in the defense schools. So my course was just 3 months. Mandi Dabwali was the base. So Mandi Dabwali is Punjab, Rajasthan, Haryana's border kind of a place. So that is where I spent almost 6 months. Tent mein. So, okay, sir. Sir, can you recall some incident, or sir, were you involved in any action, direct action, or were close to any action during this Operation Parakram that you can share with us? No, because no action took place in Op Parakram. Op Parakram was a speculated move by the defense forces, but there was no action that Indian government or Indian military took over Pakistan. So, but if we look on Google or some other sites, so we get to know that India suffered a casualty of around 700 plus soldiers. So even if we look to the recent war India fought with Pakistan, which was the Kargil war, our casualties were 524.
So what was the reason why India suffers a casualty which was even higher than a war? Uh, 2003 November 26th is the date when the ceasefire came into existence, right? Before that, there was no ceasefire, and there was a lot of collateral damage. There was a lot of cross LC firing that was on, right? I will have to go back to my sources to understand and verify these numbers that you've just brought in. Yes, you are absolutely correct. 527 is the total number of a war which took place over 2 years. And if you're giving me a number which is larger than that, I need to check that, okay? Because I am not in agreement with that, but I'm not challenging your knowledge. I will check that up and I'll come back. I still stand on my statement that politically, officially, India did not take any action on Pakistan because that is what the international treaty suggested. We were not supposed to attack Pakistan, okay? And it was because of the treaty that India had signed with the United Nations. And because of that, we could not do things that we probably intended doing, because it is not a small thing that a parliament of a country is being attacked by the militants. And when you know the source, Yes, sir. it is not a small thing. So yes, so that's where it is. As far as being involved in a action thing, before 2003 November, I was posted in Jammu and Kashmir, and since I was an artillery officer, we had a lot of reasons to fire across the LC. And yes, we had targets. We have neutralized targets. In September 2003, there was a group of 19 militants which tried crossing Gurez sector. We neutralized them with the help of course, para and infantry, and artillery continued to do the support role of the firing of heavy guns, and that is what our role was. So, and at times there are certain casualties which is beyond you. You know, you don't intend to fire on a school, but next to that, if there is a base. So suppose I was in Gurez and the regiment headquarters was, say, 800 meters from a school. So no one, when firing from the other side, would know that where the missile or the ballistic is going to fall, right? So you do all of Yes. it in good intention. When you say good intention, you fight for your country, right? You don't fight for a religion. You don't fight against uh, an individual. Every soldier is to be respected, and we always have had this thing. आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी जिसमें हमने पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स को वापस किया था, और जिन लोगों को पाकिस्तान ने नहीं क्लेम किया उसके भी लास्ट राइट हमने बहुत सारे, एक फौजी का जैसा सम्मान होना चाहिए वैसा हमने किया था. सो वी रिस्पेक्ट every soldier, you know, because everybody is trying to fight and protect his country, right? So nobody is good or bad. So yes, this is what it is. So when you look back and see your tenure in the army, so what life lessons you learned that you would like to share with us? I think the biggest life lesson that I learned was the value of life itself. We take life for granted. When I say we take life for granted, हमें लगता है कि so the moment you see death from a close distance, जब आपको तो कहते हैं ना कि जब हारने का डर हो तब जीत का मजा बढ़ जाता है. तो जब आप हर रात ये सोच के सो कि अगले दिन जगोगे या नहीं जगोगे, आपकी नींद में कोई गोला ना आके गिर जाए, who all are dependent on you, the value of money, जब आप उसको किस तरीके से कमाते हो, क्या काम करके आपको कितने पैसे मिल रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी चल रही है, आपके घर वालों की रोजी रोटी चल रही है.
So I think after coming out from the army, the biggest lesson that I learned was the value of life itself. Don't take life for granted. Don't take, I think बहुत सारे लोग ये चीजें कहते हैं और हमें सुन के बड़ा आध्यात्मिक भी लगता है कि but we need to be grateful to the fact that we live in a free country, right? And I can vouch for it that इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, किसी के दिमाग में ये बात कभी आई भी नहीं होगी कि हम लोग स्वतंत्र हैं. You're free, right? Look at Sri Lanka. If I go by Sri Lanka, and if I go by the news, today was the last day for petrol in Sri Lanka. कल श्रीलंका में पेट्रोल नहीं होगा. Look at Afghanistan. Look at the way the government changes in Pakistan. So a country is as strong as the people of the country are. Okay, so you all are contributing to the strength of this country, irrespective of what you're doing, where you're doing. हर रोज की freedom, it's not a easy thing to come by. You've become a strong economy, and I think we need to be really, really grateful. We need to be grateful to God for a lot of things that we have had. Look at Corona. A lot of people lost their parents. A lot of people lost their near and dear ones. But we still take our parents for granted. I think the parents are the most taken for granted species on the earth. खाना खा लो, अभी मम्मी मन नहीं है यार, अभी हटाओ, मतलब आप खाओगे मम्मी को लगेगा. Anyways, coming out of defense, so I think this is one of the most important thing. Another thing that you learn from defense is that in life death situation, there is no discrimination of who's an officer and who's a jawan, you know. So, and I think that kind of situation also arose when the corona was there. Just because you had money, you did not survive. Similarly, when you are in the defense forces, whether you are an officer, whether you are a jawan, जिंदगी की वैल्यू सबकी बराबर है, right? So I think once you come out of a defense force, once you are out in your normal day-to-day life, you respect everybody. हर इंसान की जिंदगी की कीमत है और हर इंसान इंडियन डेमोक्रेसी में एक इक्वल स्टेक होल्डर है. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आपके वोट की कीमत ज्यादा नहीं है. You still can cast one vote in this democracy, no matter who you are. And I think the day every individual realizes that his one vote is bloody equivalent to the President of India's vote, this voting percentage will move from 60 to 80. And the day there is an 80% of voting, you will have a real representation of what people want. Absolutely, Yes. sir. Yes, sir. And we have exceeded our time. So now let's move to the most interesting question. So अरे just IPL one देखने last. वाले चले गए सर. So what? IPL देखने वाले सब छोड़ के चले गए, मुझे पता है. So one last question only we had. Please, please. In recent days, we have heard that the Department of Military Affairs has declared that has approved a draft which is about tour of duty. So this says that the young graduates will get an opportunity to serve in the Indian Army for 3 years, or for certain times, like 25% will be able to serve for 3 years. The 25% would be able to serve for 5 years, and rest would be given a permanent commission. The reason or the logic behind this was given that this would be more economical, and we will also be able to use the power of youth more efficiently. And so we also see that there is a shortage of around 1.2 lakh personals in the armed forces right now. So, but in recent days, we have seen that many retired army officers of lieutenant general and major general rank have said that doing so, like the tour of duty, will reduce the efficiency of Indian Army. Even sir, a former naval chief quoted when the Russian Navy cruiser
which was sunk by Ukraine, he quoted that this is what will happen if we implement the tour of duty. So, but if we look around the globe, we have example of Israel, a country where military service is compulsory for everyone. It's, I guess, 2 years for female and 3 years for male. So, but that country has survived its adversaries well with this scheme. So, what do you think whether this will enhance the ability of Indian Army or will it degrade? Without discriminating anyone, there are two things and two examples that I will give you. Number one, do you believe in individuals or do you believe in the system? I believe in the system. I came from the defense forces. If they have decided something, I'm pretty sure they have a broader overview than I have as an individual. One. Number two. Yes, sir. Give me three of your biggest armed forces heroes' name. Three martyrs. Those who attained Veer Gati. Give me three names. Captain Vikram Batra. So, Second Lieutenant Arun Khetrapal. Flying Officer Nirmaljeet Singh Sethi. तीनों लोगों की एज बताओ. Service in the फौज. So they all were below 24. So for not more than Below 3 to 4 years. Below 3 years. Yes, sir. You Yes, have sir. the answer. If someone after serving 2 years deserves a Paramveer Chakra, the day you are there, you are there. The number of days will not define how well or how good or bad a soldier you are. A soldier is a soldier on day one. So if you can die within 3 years, you can do everything within 3 years. That's it. That's my lookout at it. Secondly, if there are people who are sitting there, if they are designing something, everything is changing. When I started this talk, I said everything is changing. It's an ever evolving situation. इंसानों की जरूरत कम पड़ेगी, मशीनों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी. आपका घर बना होगा आज से 50 साल पहले. जिस काम को करने के लिए मैनुअल एफर्ट लगता था, उस काम को आज मशीन करके दे रही है. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. करने में 100 लोगों का हाथ लगा, आज उस काम को करने में 25 लोगों का हाथ लगा और 75 लोगों का काम करने के लिए मशीन आ गई. Yes, sir. This implies everywhere. The war which was fought on foot may have a sophisticated system to tackle those numbers, and you may need lesser people. You can't force the government to continue to hire the number of people that were hired some years back. Are we trying to say that the government is or the जरूरत भी है, वैकेंसी भी है, लोग भी हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है? Come on, have a heart. We do want people, and anybody who has the jazba to get into the army, they should be able to get a good living for themselves anywhere, right? So it's nothing against anyone. I understand the kind of hard work that people do to get into the defense forces and the kind of honor and respect you get out of serving the defense forces, but you can't force the organization to have you there, right? They know what is right. System. I would still go with system. ठीक है? So, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely right. अब इसका पार्ट 2 करेंगे. गैंग ऑफ वासेपुर पार्ट 2. Sir, I'm we had available more online. questions. Anyone and everyone who's here, whose question is unanswered, I would be very happy to connect one-on-one. You guys can DM me and I will be able to, in my own wisdom, जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा.
So we have more बाकी questions, but obviously we have exceeded the time limit. yes, So, we'll sir, plan it some on other time. behalf of, pardon, sir. Yes, sir, for sure. We will plan some other time. So, on behalf of 1 by 3 company, St. Xavier's College, Ranchi, NCC, I personally thank you, sir, for joining with us today, and all the spectators, seniors, juniors, our cadets who have been present here. So, this is me, Sergeant Shruti Pandey, and our senior under officer Saket Kumar, your host for the evening. So, with this, we have come to an end of the session. Hope you all liked it, and that's it, sir. Thank you so much. Thank you so much, Shruti. Thank you so Thank much, you, sir. Saket. The kind of questions that you guys asked, they were really good, and I'm sure that you did your homework very well. So all the best for your future endeavors. I'm pretty sure you guys will do great. और ऐसे ही अच्छा करते रहिए, देश का नाम आगे बढ़ाते रहिए, घर वालों का नाम आगे बढ़ाते रहिए. And I hope someday we cross our path somewhere. ठीक है? Definitely, definitely, Yes, sir. sir. All right. Take care. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Bye. Jai Hind. Jai Hind, sir.